Hello students, my name is Pratik Mishra and this video lecture series is for first year and second year students. Precisely we'll talk about how to plan your civil engineering for your upcoming 4 years. The basic problem being student third year के बाद में when he reaches or completes his 6th semester, suddenly he realizes that he has to face all the interviews. He has to face his gate examination after 4-5 months. उस सिचुएशन में उसकी जो कंफ्यूज स्टेट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. उसको अवॉइड करने के लिए a student can plan his engineering starting from his day one. इंजीनियरिंग प्लान करने के लिए उसको सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि उसको सिविल इंजीनियरिंग में बेसिक कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस रखना है. अगर हम प्रिसाइजली सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग को हमने सेवरल कैटेगरीज में कैटेगराइज करके रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, देन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड सो ऑन. Structural engineering basically comprises of a subject known as strength of material, जो कि स्टूडेंट अपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ता है. Then you have two subjects of structural analysis. After you have studied structural analysis, there is a subject called design of RCC, reinforced concrete structures, and design of steel structures. Under geotechnical engineering, we have two major subjects called as soil mechanics and foundation engineering. Transportation engineering has a series of subjects जिसमें प्रेसाइजली सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का मेन फोकस रहता है हाईवे इंजीनियरिंग पे. और वंस अ स्टूडेंट इज क्लियर इन हिज कॉन्सेप्ट्स इन हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, पोर्ट्स एंड हार्बर्स एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग उसके लिए पढ़ना काफी इजी हो जाता है. मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में ये रेस्ट जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये ऑप्शनल के तौर पे दिए जाते हैं. फोर्थ सेक्शन बीइंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये बहुत ही निग्लेक्टेड सेक्शन होता है और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूं कि दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसको आप एक बार में पढ़ के खत्म कर सकते हैं. एंड यकीन मानिए आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं है इस सेक्शन में. एनी एग्जाम्स यू विल गोइंग टू फेस आफ्टर योर इंजीनियरिंग फॉर द सेक ऑफ कॉम्पिटिशन, जस्ट एज गेट एग्जामिनेशन, engineering service examination or PSC examination, you will see a series of questions from environmental engineering section, जिसमें भी the major questions will be from wastewater engineering. जो second most important topic है in environmental engineering is raw water engineering. In recent trends, some of the PSCs and this engineering service examination UPSC has started asking few of the questions from solid waste management. Again, a very small topic is still one of the most scoring topic. Next is fluid mechanics. It is the most important subject of civil engineering. I should say the most important because once you studied fluid mechanics thoroughly, you will be able to answer all the questions of fluid mechanics, few of the questions of water resource engineering. That is, some of the basics of fluid mechanics are required to deal with hydrology, irrigation and open channel flow topics. Therefore, this fluid mechanics is one of the very crucial and important topic in civil engineering. Few of the other scoring subjects are building material and surveying, जिसको आपको टाइमली रिवाइज करते रहना होगा. अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को रिवीजन नहीं करेंगे तो अगेन ये आपकी मेमोरी से कंप्लीटली वैनिश हो जाएंगे एंड अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रेश इन द फील्ड ऑफ सर्वेइंग एंड बिल्डिंग मटेरियल. नेक्स्ट इज कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. ये दोनों सब्जेक्ट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है. कंक्रीट टेक्नोलॉजी बीइंग अ बेसिस ऑफ आरसीसी डिजाइन. अगर आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं तो ऑब्वियसली आप रीइंफोर्स कंक्रीट डिजाइन में ऑटोमेटिकली कुछ हद तक अच्छे और हो सकते हैं. कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एक अपनी सेपरेट फील्ड है. रिसेंटली पीपल डू MBA इन दिस फील्ड एंड वर्क एज अ मैनेजर ऑन अ सिविल इंजीनियरिंग साइट. तो ये भी अपने आप में एक ब्रांच है related to civil engineering. After
saying the complete details of the subject, ki what all subjects we have to study in the field of civil engineering in a span of 4 years. We need to think about what all subjects are important for GATE examination or for engineering service examination which is conducted by UPSC. We should analyze each and every point regarding these two exams कि हमारे को इन दो एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे प्रिसाइजली ज्यादा फोकस रखना है. आपने देख रहे होंगे कि मैंने कुछ स्टार्स फॉर्म में मार्क करके रखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट. इम्पोर्टेंस भी कितने मार्क्स का वो सब्जेक्ट कंटेंट पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में. एंड दिस इम्पोर्टेंस इज basically for two examination that engineering students generally face. First one is GATE examination and second one is engineering service examination. बाकी other PSCs का, हर स्टेट की PSCs का अपना फॉर्मेट डिफरेंट होता है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे. लेकिन GATE और ES को कंबाइन करके अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स कंबाइनली, then highway engineering, wastewater engineering, fluid mechanics, surveying, building material, construction planning and management, जहां से आपको मेजर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे. जिन किन्हीं भी सब्जेक्ट्स के आगे मैंने 3 स्टार मार्क करके रखा है, आप मान के चलिए कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का गेट में वेटेज इज अराउंड 5 to 6 questions and ES में around 40 to 50 marks. I've seen many videos जिन स्टूडेंट्स ने अपने इंजीनियरिंग खत्म करने के साथ ही साथ they have scored a very good rank in GATE and they have scored very good marks in engineering service examination और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने दोनों एग्जाम क्लियर किए हैं. उनकी एक सेट स्ट्रैटेजी मेरे को समझ में है एंड वो सेट स्ट्रैटेजी हर एक स्टूडेंट पे डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से अपनाता है. लेकिन एक जो कॉमन चीज उन सारे स्टूडेंट्स के बीच में थी, दैट इज दे हैव प्लान्ड देयर 4 years वेरी एफिशिएंटली. अगर हम क्रक्स की बात करें कि आप बेसिक चीजें कैसे प्लान कर सकते हो, तो मोटे मोटे तौर पे यू कैन एंजॉय योर फर्स्ट ईयर. आपको जैसे आपको स्पेंड करना है, यू कैन स्पेंड इट वेरी वेल. गैदर सम नॉलेज, गैदर सम बेसिक्स अबाउट योर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, जो कि हर फील्ड से कुछ कुछ आपको पता चलेगा. एक्सप्लोर योर कॉलेज, ट्राई एंड अंडरस्टैंड योर कॉलेज कि आपके कॉलेज में क्या दूसरी एक्टिविटीज और होती हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करके आप अपने को करिकुलर्स को और एक्सपैंड कर सकते हैं या अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं. फर्स्ट ईयर इज वेरी सिंपल. आपको जिस तरीके से स्पेंड करना हो आप कीजिए. ये है कि अपनी एनालिटिक्स स्किल्स को आप वहां से डेवलप करना स्टार्ट कीजिए. सेकेंड ईयर में जब आप आते हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर इंजीनियरिंग, जहां पे आपको ये डिसाइड करना होता है कि इन फ्यूचर आपको करना क्या है. अगर आप अपने सेकेंड ईयर में बिल्कुल स्ट्रेंथ हो जाते हैं अपने डिसीजन को लेके कि आपको फेस क्या करना है आगे चल के, वेदर इट बी अ MBA एग्जामिनेशन जो कैट वगैरह होता है और इट हैज टू बी अ टेक्निकल एग्जामिनेशन लाइक गेट और ES, वो काफी अच्छा होता है आपके करियर ग्रोथ के लिए. वंस यू आर क्लियर दैट यू हैव टू फेस आइदर ऑफ द एग्जाम, ट्राई एंड एक्सप्लोर अबाउट दैट एग्जाम कि वो एग्जाम में पूछा क्या जाता है, क्या पैटर्न होता है उस एग्जाम का, कितने मार्क्स का वो एग्जाम होता है, कैसे सिलेक्शन होता है उसमें, सिलेक्शन होने के बाद व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज यू विल गेट, आप क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप अपने सेकेंड ईयर्स में पूरी कर सकते हैं. सेकेंड ईयर बीइंग द की ईयर ऑफ योर इंजीनियरिंग, जहां आपको जो भी एग्जाम या इंटरव्यू फेस करना है, यू मस्ट नो अबाउट इट वेरी वेल. आप जितनी रिसर्च कर सकते हैं इस ईयर में कीजिए. आप अदर सब्जेक्ट्स की या फिर अदर कोर्सेज लाइक ऑटोकैड और स्टार्ट प्रो. ऑटोकैड इज बेसिकली डिजाइन सॉफ्टवेयर, स्टार्ट प्रो इज अगेन अ डिजाइन सॉफ्टवेयर. आप इन दोनों के भी सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हैं.
ऑटोकैड और स्टैट प्रो का सर्टिफाइड कोर्स होने से आपका रिज्यूम काफी स्ट्रांग होता है एंड मेनी ऑफ द कंपनीज प्रेफर कि उनके जो बंदे एम्प्लॉय वो करें या फिर सिलेक्ट करें, दे मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज रिगार्डिंग ऑटोकैड एंड स्टैट प्रो. Third year is the year of your pure hard work, focus, revision and development of your analytical skills. You can develop your analytical skills either in the form of technical questions or GD preparation, personal interview preparation or by developing your aptitude. ये चारों एरिया में you must have a very sound preparation in your third year only. Complete third year आपका डिसाइडिंग होता है कि आपकी इंजीनियरिंग कैसी जाने वाली है आगे. अगर आप अपने थर्ड ईयर में कंप्लीट फोकस रख के काम नहीं करते हैं तो अगेन आपको फोर्थ ईयर कंप्लीट होने के बाद यू हैव टू गिव वन मोर ईयर फॉर योर प्रिपरेशन, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं. अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद में दे विल गो फॉर प्रिपरेशन, दे विल प्रिपेयर फॉर 1 year और 2 year एंड देन दे विल क्रैक एग्जाम, जो भी इन फ्यूचर वो देंगे. लेकिन बेहतर ये होता है कि अगर आप फाइनल ईयर पास करते करते यू गेट सिलेक्टेड इन वन ऑफ दोज एग्जाम्स, उसके लिए इफ यू गिव योर कंप्लीट डेडिकेशन इन योर थर्ड ईयर, योर चांसेस इंक्रीज फॉर सिलेक्शन. आप अपना थर्ड ईयर कंप्लीट जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनको दीजिए, अच्छे से दीजिए, पूरा फोकस और डेडिकेशन देते हुए साथ ही साथ उन सब्जेक्ट्स को टाइमली रिवीजन करिए. आप महसूस करेंगे कि आप उसी ईयर में हजारों लोगों से आगे हो गए हैं. और जब आप फाइनल ईयर में आते हैं, ये जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम थर्ड ईयर टू फाइनल ईयर, ये इतने जल्दी होता है कि एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कब उसका फाइनल ईयर आ गया. फाइनल ईयर के स्टार्टिंग में ही यू स्टार्ट गेटिंग कंपनीज इन योर कॉलेज जिनके आपको बहुत सारे टेक्निकल राउंड्स या फिर जीडी या फिर इंटरव्यूज फेस करने होते हैं. आपकी जब ऑलरेडी थर्ड ईयर में इन 3 एरियाज में अच्छी खासी तैयारी हो गई होती है, आप अपने फाइनल ईयर में अपने आप को प्रिविलेज स्टेट में पाते हैं एंड उसका रिजल्ट क्या होता है, यू वेरी इजीली यू क्रैक इंटरव्यूज. फिर नेक्स्ट फरवरी आते आते व्हेन यू आर गोइंग टू फेस योर गेट एग्जाम इन योर फाइनल ईयर, आप काफी अच्छा स्कोर कर पाते हैं बाकी आपके बैचमेट से जिनने अपनी इंजीनियरिंग को उतनी अच्छे से प्लान नहीं किया है. तो माय थिंग बीइंग कि अगर आप अर्ली सक्सेस चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो आफ्टर योर इंजीनियरिंग एंड यू गेट अ वेरी गुड जॉब और गेट अ वेरी गुड सिलेक्शन इन एनी ऑफ द PSUs or you can get a very good selection in any of your MBA college if you want to, then plan your engineering accordingly. एक बात याद रखिएगा कि इन 4 सालों में या फिर आने वाले लाइफ में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ेगी, दैट इज सेल्फ बिलीफ. अगर आप खुद पे भरोसा करते हैं कि आप कोई भी एग्जाम को निकाल सकते हैं और उसको निकालने की काबिलियत रखते हैं, तो डेफिनेटली फॉर श्योर वो एग्जाम आपका 100% रिजल्ट के साथ निकलेगा. माय बेस्ट विशेस आर विथ यू. प्लीज प्लान योर इंजीनियरिंग बिफोर टेकिंग एडमिशन और आफ्टर टेकिंग एडमिशन. थैंक यू.